Hello, dear friends, and wish you all a very, very happy Republic Day. And on this occasion, I would want to discuss 5 powerful anecdotes emphasizing the theme in an essay based upon legal philosophy. Now, while studying ethics, I'm sure all of you must be studying ethics. While we study ethics, we come across a dichotomy between legal positivism versus natural law. There are many theorists who have written a lot in length about legal positivism, means that आपको obey करना पड़ेगा state की authority को, just because it is a law, you will have to obey for it, no matter if the law is just or unjust, but you would have to obey the law. And then natural law के जो theorists हैं वो ये कहते हैं कि यार कि कानून unjust भी हो सकता है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप unjust कानून को भी obey करो just because वो कानून है. See, understand one thing. The basic purpose of law is to make job easier for you and me. The purpose of the law is not to create confusion. The purpose of the law is not to create a state of anarchy. The purpose of the law is not to create mayhem. Laws, not necessarily that just because it is a law, it would be just. There would be unjust laws and there would be just laws. So based upon that, let's discuss 5 powerful examples or anecdotes which you can utilize if you are writing an essay based upon jurisprudence or based upon legal philosophy, whether you're writing for state PCS, whether you're writing for UPSC mains. I believe essay writing has a very important role to play in every exam. So let's discuss these 5 powerful examples. My name is, of course, Kuber Singh, and I'm your educator for IR, essay writing and internal security. The first example is the trial of Socrates. Now, back in 399 BC, the prominent Athenians, the prominent people of the, Greece civilization, of the Greece society, they were wanting to persecute this man Socrates. Why? Because he was a philosopher and they felt that he's trying to corrupt the youngsters, the youth of the Athenian society, by encouraging them to think critically, by encouraging them to promote rational thinking. So therefore, the prominent people of those times, Lord Miletus, Anytus and Lycon, they were accusing Socrates that, look, you are, corrupting the minds of the youth. Why? Because he was encouraging the youngster to think rationally, to think critically. However, he was being, jailed and prosecuted, and uska death sentence announced kar diya gaya tha. Now, one night before his death sentence had to happen, his friend, he gave him the opportunity that, look, boss, nikal le, escape kar le, I'm giving you the chance. But he said, no, I will not escape. Socrates, interestingly, he chose, although his whole life, he was propagating that think rationally, think critically, do not obey anything just because it's being, enforced upon you. But the same Socrates, he did not want to disobey the law. Because he felt that disobeying the law, that look, if you're trying to prosecute me, if you want to cut my head, if you want to latkao me, if you want to give me phansi ki saza, just because I'm encouraging the youngsters to think rationally, to promote rational thinking, अगर social contract, अगर कानून मुझे कहता है कि मुझे सजाए मौत हो, तो मैं accept करूंगा, मैं उस मौत से भागूंगा नहीं. उसके famous words हैं, Socrates के famous words हैं, he says that it is not living that matters. जीना जरूरी नहीं है, लेकिन सही जीना बहुत ज्यादा जरूरी है. It is not living that matters, but living rightly what matters the most. So therefore, he chose to obey the laws. So which means that he chose to go to the side, he chose to be on the side of legal positivism. And he did not chose to be on the side of natural law. He did not feel that, no, so he felt that whatever I am obeying to or whatever saza मेरे को सुनाई गई है, that is just. Socrates का जो शहादत है, Socrates का जो martyrdom था, that raised profound questions about whether law must always be obeyed or challenges or laws can be challenged जब वो laws unjust हैं. बात को समझ रहे हो कि क्योंकि वो कानून है, क्योंकि किसी लॉ मेकर ने कानून बनाया है, इज इट नेसेसरी कि उस कानून को हमेशा ओबे करना है या उसको चैलेंज कर सकते हैं. सॉक्रेट्स की जो कमिटमेंट थी, सॉक्रेट्स बहुत कमिटेड था अपने सिद्धांत पे, अपने प्रिंसिपल्स थे, इवन इन द फेस ऑफ डेथ. और सॉक्रेट्स के इस पर्टिकुलर एक्ट ने एक मिसाल खड़ी करी इन द स्कूल्स ऑफ थॉट इन लीगल फिलॉसफी, जहां पे लीगल पॉजिटिविज्म, नेचुरल लॉ और सिविल डिसोबीडियंस के बारे चर्चा होनी शुरू होती है.
तो ये जो ट्रायल हुआ सॉक्रेट्स का, दैट रेज्ड प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ जस्टिस. यू आर हैंगिंग अ मैन जस्ट बिकॉज ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग. He is trying to do something which is not suiting the establishment of the day. Now today we talk about dissent as an essential part of democracy. Today we talk about the misuse of UAPA, NSA, Sedition Act, this and that. But something similar was being done thousands and thousands of years back. But he chose to be on the side of the law, that I will obey the law whatever it is. Socrates का acceptance of the death sentence, despite that he had an opportunity कि भाई भाग सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, निकल सकता हूं, ये एक अर्लियर वर्जन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की अडॉप्शन को दर्शाता है. ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मच लेटर, ये तो चलो 399 बीसी की बात है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो बहुत बाद में जाके आई थी, 14-15 सेंचुरी में जाके जो फिलोसोफर्स थे हॉब्स, जॉन लॉक एंड रोस्यू, ये उनके द्वारा बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रमोट करी गई थी कि भाई देखो हमारे समाज में जंगल की व्यवस्था नहीं हो सकती है, हमारे समाज में जंगल राज नहीं हो सकता है, आप और मैं एक दूसरे के लिए कानून इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप और मैं हम एक आम नागरिक हैं, हमारे ऊपर एक हायर अथॉरिटी होना जरूरी है कि मैं कुबेर हूं, मैं सुरेश हूं, मैं रमेश हूं, लेकिन हमारे ऊपर एक हायर अथॉरिटी है, एक हायर अथॉरिटी है, और हमने अपनी अथॉरिटी इस हायर अथॉरिटी को दे दी है, क्योंकि इसको हम चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, और ये तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है. तो नैतिकता और मानव अधिकार का जो समर्पण है हमने इसको दे दिया है, हायर अथॉरिटी को. ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि आप और मैं, हम अगर एक दूसरे के साथ कानून की व्यवस्था में उलझना शुरू कर देंगे तो जंगल राज हो जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने से छोटे को दबाने की कोशिश करेगा. कोई ताकतवर होगा, कोई कमजोर होगा, दैट इज इट. तो ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हमारे ऊपर कानून की व्यवस्था है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, तो परहैप्स वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इंश्योर करेगी कि हमारे यहां पे जस्टिस इंश्योर किया जा रहा है, इंसाफ इंश्योर किया जा रहा है. ठीक है. सो फिलोसॉफिकल इंसाइट. सो ये सॉक्रेट्स का ये जो अडॉप्शन, ये सॉक्रेट्स का जो मतलब obeying the particular punishment था, that also raised many questions regarding legal positivism and natural law, and also laid the foundation of the social contract theory. But again एक important question हमारे सामने खड़ा होता है कि individuals like you and me, क्या हमको unjust laws obey करने जरूरी हैं simply because they are a part of the समाज, they are the part of the society, or we can resist them and reform the system as well. आगे बढ़ते हैं गांधी दांडी मार्च में. अब गांधी दांडी मार्च, अब जब सॉल्ट टैक्स की बात करेगी तो महात्मा गांधी ने कहा कि यार कितनी बुरी बात है कि आप एक गरीब इंसान को सॉल्ट के लिए टैक्स कर रहे हो. और महात्मा गांधी, जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में कॉल ऑफ कर दी थी, 1922 के बाद कई सारे ऐसे मौके आए थे व्हेन महात्मा गांधी वाज बीइंग प्रेशराइज्ड एंड महात्मा गांधी वाज बीइंग परसुएडेड दैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट another round of civil disobedience movement. Now Mahatma Gandhi saw this particular salt tax as that particular force, as that particular point which can unite the masses, because he was looking for something unifying, and perhaps the salt march, perhaps the levying of the salt tax on the common man, that gave him that leverage that yes, now I can unite the masses. Now Gandhi was very adamant that look, I am not going to encourage you to do tod fod and hangama and shor sharaba. I believe that this particular salt tax, this is unjust, and therefore it is not very nice of us to obey to this law, which means he was arguing for the fact that I will disobey unjust laws, and unjust laws को अगर मैं disobey कर रहा हूं, so they should be resisted very peacefully. So non-violent resistance that eventually paved the way for India's independence. This is 1930. We're talking about 1930, and of course this non-violent form of resistance, this civil disobedience movement, this also gave a lot of inspiration to thinkers like Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela in the times to come. So गांधी के जो actions थे, that emphasized the principle कि moral legitimacy is greater than legal authority. यानी कि जो नैतिकता के तौर पे, यानी कि जो नैतिकता है, मोरालिटी है, मोरालिटी जो है वो नेचुरल लॉज में से आती है. जो मोरालिटी है वो आप नेचुरल लॉज में से डिराइव कर सकते हो, क्योंकि अगर जो कानून की व्यवस्था लीगल अथॉरिटी ने बनाई है, अगर उसमें मोरालिटी मिसिंग है तो उसको क्यों फॉलो करना. सीधी सी बात है कि लीगल अथॉरिटी अगर ऐसे कानून बना रहा है जहां पे लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को क्यों फॉलो करना. सिंपल एज दैट. नाउ द कंसेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. नाउ हेनरी डेविड थोरियो ने, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस दिया था एज अ लीगल एंड मॉरल फिलॉसफी व्हिच इन्वॉल्व्ड द डेलिबरेट एंड नॉन वायलेंट वायलेशन ऑफ अनजस्ट लॉज टू हाईलाइट देयर इमोरालिटी एंड सीक चेंज.
नाउ इंस्पायर्ड बाय थिंकर्स लाइक हेनरी डेविड थॉरेउ, गांधी का ये मानना था कि देखो हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, आपकी मेरी इंडिविजुअल्स की एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि जब आपके सामने कानून अनजस्ट है, जस्टिफाइड नहीं है, आपके सामने कानून ऐसे हैं जो कि आपको इंसाफ नहीं बट ना इंसाफी दे रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है, इट इज योर ड्यूटी टू कॉन्ट्रडिक्ट, इट इज योर ड्यूटी टू डिसोबे देम। एनी काइंड ऑफ कानून, एनी काइंड ऑफ लॉ विच इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द नेचुरल जस्टिस, दैट शुड नॉट बी ओबेड। बात समझ रहे हैं? सॉल्ट मार्च ने डेमोन्स्ट्रेट करा कि जो कानून है, कानून की जो व्यवस्था है, जरूरी नहीं कि वो जस्ट है, और उसकी लेजिटिमेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द मॉरल फाउंडेशन, फ्रॉम द नैतिकता, नॉट फ्रॉम द फाउंडेशन कि वो किसने कानून बनाए हैं, और नॉट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। अब कानून बना दिया, हमने वो कानून मान लिया, जस्ट बिकॉज आपने वो कानून मान लिया डज नॉट मीन कि वो 150 करोड़ देशवासी कानून मानेंगे। वो कानून अगर नैतिकता के तौर पे सही नहीं है, मैं स्टेट सर्वेलेंस की बात करता हूं, मैं स्टेट सर्वेलेंस की अगर यहां पे बात करूं, नाउ लीगल पॉजिटिविज्म कहेगा कि यार हमको जरूरी है अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अंडर द गार्ब और अंडर द वेल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हमको स्टेट सर्वेलेंस करना जरूरी है, हमको स्नूपिंग करना जरूरी है, वी नीड टू नो कि भाई कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसके साथ व्हाट्सएप कर रहा है, लेकिन मेरी प्राइवेसी वायलेट हो रही है। नैतिकता के तौर पे अगर आप डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाना चाहते हैं तो आप एक ऐसा बिल बनाएंगे जहां पे मेरी प्राइवेसी वायलेट नहीं हो रही है, एट द सेम टाइम आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड कर रहे हैं। सो मींस कोई भी कानून का जो असली टेस्ट है, वो असली टेस्ट जो है वो नैतिकता के तौर पे होगा। ये बात गांधी जी ने कही, ये बात कई सारे और थ्योरिस्ट ने कही। अब आपको ये बात बहुत आइडियलिस्टिक लगेगी कि सर ऐसा तो नहीं होता, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो जितनी सारी क्रांतियां हुई हैं हमारे इतिहास में, वो तो इसी बात का मैनिफेस्टेशन है। गांधी ने इस प्रिंसिपल को, सिविल डिसोबीडियंस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, एम्फसाइजिंग कि सत्य इज अ मीन्स, इज अ कैटलिस्ट टू कन्फ्रंट द ऑप्रेसिव लीगल सिस्टम बट बाय पीसफुल मीन्स। देन थर्ड एनेक्डोट यहां पे बात करेंगे, द न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में कितने सारे ज्यूस को मारा गया, कितने सारे ज्यूस को प्रोसिक्यूशन कैंप्स में रखा गया, ट्रायल्स हुए, कितना जेनोसाइड हुआ। ये न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स जो थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होते हैं, ये क्यों हुए थे? ताकि जो नाजी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, फॉर द जेनोसाइड्स, उनको सजा दी जा सके। और जो डिफेंडेंट्स थे, यानी कि जो अफसर थे, जो नाजी ऑफिशियल्स थे, वो कह रहे थे कि भाई हम तो अपना हिटलर का कानून फॉलो कर रहे थे, जैसे हमको ड्यूटी दी गई थी, जैसे हमको बोला गया था, हमारे जो हायर अथॉरिटीज थे, जैसे उन्होंने हमको कहा था, हम वही फॉलो कर रहे थे। अब बात उनकी भी सही है, लेकिन अब जो नेचुरल थ्योरी आती है, जो नेचुरल लॉ की थ्योरी आती है, वो थ्योरिस्ट ये कहेंगे दैट यार कि नैतिकता के तौर पे आपका ज़मीर आपको अलाउ कर रहा था कि आप किसी इंसान को बेस्ड अपॉन हिज और हर रिलीजन और हिज और हर कम्युनिटी मारते रहें। कोर्ट ने डिफेंस रिजेक्ट किया, ये एस्टैब्लिश किया दैट लुक देयर इज अ हायर मॉरल लॉ जो कि किसी भी देश के लीगल सिस्टम के बियॉन्ड ट्रांसेंड करता है। और ये जो ट्रायल्स हुए थे उसने इस आइडिया को रीइंफोर्स किया कि जो लीगल पॉजिटिविज्म है, यानी कि लीगल पॉजिटिविज्म, द अथॉरिटी विच इज डिराइव्ड बिकॉज द अथॉरिटी डिराइव्ड बाय ओबेइंग द स्टेट लॉज, दिस नीड्स टू बी डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल लॉ, जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है। और ये न्यूरम्बर्ग जो इंसिडेंट था, ये जो ट्रायल्स थे, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन प्रेसिडेंट सर्व करा, जिसके चलते मॉडर्न ह्यूमन राइट्स लॉज बने। आगे जाके जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना, ये न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स ने उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ले किया। अब न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स में बेसिकली यहां पे जो फोरफ्रंट था, जो डायकोटमी था ऑफ द डिबेट, वाज बिटवीन नेचुरल लॉ एंड लीगल पॉजिटिविज्म। जो अफसर थे वो कह रहे थे कि भाई देखो हम तो वही कर रहे थे जो हमको हमारे सीनियर्स ने, सुपीरियर्स ने कहा था करने के लिए। एंड एज पर द लीगल पॉजिटिविज्म, लॉ इज डिराइविंग इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट, इररिस्पेक्टिव कि वो सही है कि गलत है। लॉ इज लॉ। चलो यहां पे सरकार का आर्ग्यूमेंट भी सही है कि भाई मेरा काम है कानून बनाना, वो कानून आपको पसंद आए या ना पसंद आए ये सोच के तो मैं कानून बनाना या ना बनाना तो नहीं करूंगा। मींस कि भाई जो लॉ मेकर्स हैं वो कुछ ऐसे टफ डिसीजंस लेंगे, कुछ ऐसे कानून बनाएंगे जो कि पॉपुलरली एक्सेप्टेड नहीं होंगे। अग्रीड। मोदी जी ने कानून बनाया नोटबंदी का, पॉपुलरली एक्सेप्टेड नहीं था, लेकिन सबको करना पड़ा इन द फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी। कल को कानून बना के भी लॉकडाउन होता है, कोई लॉकडाउन पॉलिसी बनती है, किसी को पसंद नहीं था कि घर पे बैठना है, 1 साल घर पे बैठे रहे, दुकान नहीं जा पाए, दाढ़ी नहीं बना पाए, ये हो गया वो हो गया, बट कानून है, कानून को ओबे करना पड़ेगा।
इररिस्पेक्टिव कि वो सही है कि गलत है। ये एक आर्ग्यूमेंट उन थ्योरिस्ट का है, उन लोगों का है जो कि लीगल पॉजिटिविज्म को सपोर्ट करते हैं। एंड देन जो प्रोसिक्यूशन थी इस न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स में, दे वर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द थ्योरिस्ट ऑफ द नेचुरल लॉ, जैसे कि जॉन लॉक थे, जिनका यह कहना था कि जो कानून है दे हैव टू बी रूटेड इन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। तो यानी कि यह बात असर्ट करी गई थी दैट एक हायर लॉ है जो कि आपकी पावर से भी कुछ बढ़ के है, वो है एथिकल स्टैंडर्ड्स और नैतिकता और एकाग्रता की बात करता है, विच इज ट्रांसेंडिंग नेशनल लीगल सिस्टम्स। कि भाई मर्यादा की बात है, मान मर्यादा की बात है, आप जेनोसाइड कर रहे हो, आप इनोसेंट बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को जस्ट बिकॉज वो किसी और कम्युनिटी या रिलीजन के हैं उनको मार रहे हो, तो कौन सा देश का कानून कहता है कि ये बात जस्टिफाइड है? सो ये जो ट्रायल्स हुए थे, ये ट्रायल्स ने भी अंडरस्कोर करा और एक्सपोज करा कि जो कानून जिनमें मर्यादा या नैतिकता नहीं है, वो ह्यूमन राइट, वो मानव अधिकारों के वायलेशंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एंड हेंस लॉज हैव टू बी अलाइंड विद मॉरल वैल्यूज। अगर लॉज मॉरल वैल्यूज के साथ नहीं अलाइंड है, लॉज नॉट अलाइंड विद moral value are not legitimate. देन अपनी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में फिलोसोफर जॉन रॉल्स ने एक नया कंसेप्ट शुरू करा, एक्सपेरिमेंट वेल ऑफ इग्नोरेंस, एक पर्दा ऑफ इग्नोरेंस। उन्होंने ये कहा कि अगर इफ इंडिविजुअल्स वर टू डिजाइन अ लीगल सिस्टम विदाउट नोइंग देयर सोशल पोजीशन, they would choose fair and just laws which are benefiting all. अब ये बेसिकली यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करी, वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल यानी कि पर्दा, इग्नोरेंस यानी कि नहीं पता, जहां पे इंडिविजुअल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है कानून बनाने के लिए, रूल्स ऑफ द सोसाइटी बनाने के लिए, उनको एक पर्दे के पीछे रखा जाए, एक ऐसा पर्दा जहां पे उनको नहीं पता, जहां पे उनको अपने बारे नहीं पता, समाज के बारे नहीं पता कि लोग गरीब हैं कि अमीर हैं, लोगों का रंग क्या है, लोगों का जेंडर क्या है, लोगों की एथनिसिटी क्या है, लोगों के रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स क्या है, और लोगों की एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज क्या है। यानी कि अगर एक ऐसा पर्दा रख दिया जाए, वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि अगर लोग इग्नोरेंट हो, यानी कि जो लोग कानून बना रहे हैं अगर वो इग्नोरेंट है, उनको नहीं पता कि वो कानून एक ऐसे समाज के लिए बना रहे हैं जहां पे दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रियस भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, औरतें भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, एक ऐसा कानून जहां पे आपको पता ही नहीं है, where you don't know that there is anything different apart from you. All you know is that I am a fellow human being, the other person is a human being, that is a human being, the other is a human being, that is it. So making a law, making कानून in such a society whereby you're making laws for human beings, not for caste, not for religion, not for ethnicity, not for gender. तो इस सिचुएशन में जो कानून बनेंगे, या इंडिविजुअल्स हु विल एंड अप टेकिंग डिसीजंस विदाउट द नॉलेज ऑफ देयर पोजीशन इन द सोसाइटी, तो देयरफॉर जो लीगल सिस्टम बनेगा वो जस्ट और फेयर बनेगा। अब ये बहुत आइडियलिस्टिक बात है, दिस इज अगेन अ वेरी आइडियलिस्टिक वे टू से, इट इज वेरी आइडियलिस्टिक टू अज्यूम कि कानून ऐसा बनेगा। बिकॉज वाई? बिकॉज ऐसा कानून अगर बनेगा जहां पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है अपने धर्म, जाति, जेंडर एक्सेट्रा के बारे, सो देयरफॉर दे वुड ऑलवेज मेक अ लॉ which will be advantageous to them, which will not be disadvantageous to them, will be advantageous to them, and therefore if that is advantageous to them, therefore that would be advantageous for everybody in the society. Last example, last anecdote है the case of Rosa Parks. 1955 में रोजा पार्क्स को कहा गया था कि भैया मैडम आप अपनी सीट से उठिए, ये जो सीट्स है ये यानी कि बस में सेग्रीगेट किया गया था कि गोरे अलग से बैठेंगे, ब्लैक लोग अलग से बैठेंगे। तो ये इंसिडेंट बहुत फेमस हुआ था मॉन्टगोमेरी में, अलाबामा में, और एक पिवटल मोमेंट बना अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स में। वही अमेरिका जो कि अपने आप को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, वहीं पे सेग्रीगेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स इवन इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी तक फॉलो किया जा रहा था। उन्होंने डिफाई किया, उन्होंने कहा मैं तो अपनी बस से नहीं उठूंगी, मैं तो सीट से नहीं उठूंगी। सो देयरफॉर शी चैलेंज्ड द लेजिटिमेसी ऑफ द रेशियल सेग्रीगेशन लॉज। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट रेशियल segregation laws थे, there were racial segregation laws and they were legitimate in jurisprudence, not in terms of morality,
They were there in terms of jurisprudence. So ये event highlight करता है legal legitimacy does not always equal moral legitimacy. Just because there is a racial segregation law does not mean that morally you will have to obey with it, which means that raises questions about the legal system. This is 1955. The same America जो कि डेमोक्रेसी, पीस, जस्टिस की बात वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कर रहा था बाजे गाजे से, उसी अमेरिका में ये सब हो रहा है. So therefore, how can you uphold justice when you have racial segregation laws? Now again, legal positivism क्या कहेगा कि laws are valid अगर they are enacted by a legitimate authority, regardless of their नैतिकता, regardless of their मर्यादा. Now at the time, segregation laws legally sanctioned करे गए थे under the doctrine of separate but equal. How can you say separate but equal? That you are white, I am black, we are separate because of the basis of our color of the skin, but we are equal. How can you say that separate and equal? Meaning Rosa Parks was legally required to obey the bus segregation rule. Means कि अगर Rosa Parks bus segregation rule नहीं follow कर रही है तो technically as per law she can be booked. बट नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट जैसे कि जॉन लॉक, उनका ये आर्गुमेंट था कि लॉज हैव टू बी रूटेड इन नैतिकता, इन मर्यादा एंड फंडामेंटल मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स. तो रोजा पार्क्स का रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद सेग्रीगेशन लॉज दैट अलाइन विद द नेचुरल लॉ थ्योरी, दैट मैं नहीं मानूंगी इस कानून को बिकॉज ये कानून मोरालिटी, मॉरल लेजिटिमेसी पास नहीं करता. तो रोजा पार्क्स के एक्शंस एग्जेम्प्लीफाई करते हैं कि कैसे लीगल वैलिडिटी गारंटी नहीं कर सकता मॉरल लेजिटिमेसी को. एंड देयरफॉर हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अनजस्ट लॉस को ना माने, हम उसको रेजिस्ट करें, उसका पालना ना करें. समझ आ रही है बात आपको? चलिए दोस्तों, ये मैंने 5 एनेक्डोट्स, 5 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करें. बाकी आई नो दैट अभी प्रीलिम्स का टाइम शुरू होने वाला है. 15 फरवरी तक आपके पास टाइम है. आप अभी भी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. और वैसे हम ऐसे राइटिंग के नए कोर्सेज भी लेके आएंगे. लेकिन अगर आप अभी इस वक्त कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, वीडियोस एंड पीडीएफ ऑफ ऐसे, तो अभी हम 4500 का जो कोर्स है 4000 का दे रहे हैं. अगर आपको सही लगे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं. यूट्यूब पे तो मुलाकात होती रहेगी. आई विल सी यू वेरी सून. लव यू ऑल. जय हिंद ऑन दिस रिपब्लिक डे. थैंक यू.